So the next thing we're going to talk about is congenital Talipes equinovarus, or easier known as clubfoot. So this is a congenital deformity where the foot is twisted inward and downward. So in and down. Adduction of the forefoot, inversion of the heel, and equines at the ankle. So वो मैं अभी एक एक करके समझाती हूँ. So we यहाँ से हमें बस generally idea होना चाहिए कि it's in and down, ठीक है, than the normal वो. सो इसकी क्लासिफिकेशन दो होती है, या तो स्ट्रक्चरल हो सकता है या पोस्चरल हो सकता है. जो स्ट्रक्चरल होता है इट्स अ ट्रू डिफॉर्मिटी, रिजिड एंड रिक्वायर्स मैनिपुलेशन या सर्जरी. पोस्चरल क्या होता है, यूजुअली बच्चा जब वूम से निकलता है, यानी इंट्रा यूट्राइन पोजिशन उसकी ऐसी होती है एंड इट करेक्ट्स विद स्ट्रेचिंग, सो इट्स जस्ट पोस्चरल. सो एनाटमी में क्या हमारे पास होती हैं, जो मैं ये तीनों चीज़ें बता रही थी, एडक्शन, इन्वर्जन एंड इक्विनीस, राइट. सो लेट्स जस्ट लुक एट, यहाँ पे मैं इस तरह से इसको करती हूँ. सो एनाटमी ऑफ द डिफॉर्मिटी इज कि द फोर फुट यानी द फ्रंट ऑफ द फुट इज एडक्टिंग एट द टेलोनेविकुलर जॉइंट. सो वी कैन सी यहाँ पे द फोर फुट is adduction, right? So it's moving inside. The hind foot, यहाँ पीछे, is inversion, ठीक है? Inversion and varus. So varus we know is के यहाँ पे, right? So we see the the distalmost part is inverting towards the midline. That's varus. And remember, हमने कहा था valgus is जब it's deviating, the distalmost part is deviating away from the midline, and then this is towards the midline, right? So हमने ये पढ़ा था. तो this means कि inversion है, so we can see कि ये distalmost part inward towards the midline है. तो जो hind foot है, जो hind foot है वो कहाँ है, it's towards the midline. ये hind foot away from the midline है and ये towards the midline है, ठीक है? So you see that? अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास equinus is plantar flexion, so it's like a tiptoe kind of appearance, like जैसे ballerina होती है, ठीक है? और कैविस भी होता है. कैविस का मतलब है कि आर्च बड़ी हो जाती है. सो varus is an inward position, and then we have so we have these three sort of movements. तो जो forefront है, remember the forefront is adducting, so the front of the foot is adducting. Then उसके बाद हमारे पास आता है navicular joint. Hind foot हमारे पास varus है, यानी inward inversion है. ये देखो, inward inversion, so that is the hind foot, ठीक है? And then उसके बाद the ankle, if you look at the ankle part, it is acting like equinus हो जाएगा, which means at the ankle, like it's when you lower your foot like a ballerina. So what is that movement occurring on? Like if you were to go, like if you were to stand on your tippy toes, your ankle is the one that's doing that movement, so that's called equinus, right? So when we see this again, it's के adduction of the forefoot, inversion of the heel, inversion of the hind foot, basically, and equinus at the ankle. So hopefully that makes sense. इसका mnemonic is cavis, cave, and C stands for cavis, which is the high arch. A stands for adduction, जो कि हमने forefront में देख लिया था, forefront of the foot. Varus is inward inversion, जो कि हमने कहा था कि is the hind foot, ठीक है? And then equinus is at the ankle, right? So that's an easy way to remember the features. Etiology क्या है? कि it's usually idiopathic. So DDH, like we had a lot of risk factors, this is usually idiopathic, but it can be associated with some certain syndromes. जैसे हमने कहा था, DDH is associated with spina bifida and the toes moving to the adductus, metatarsal adductus. And also with torticollis, but this is associated with syndromes. Syndromes में हमारे पास trisomy 18 है, जो एडवर्ड सिंड्रोम है, ठीक है? फिर उसके बाद E से ये ED, and then use D here, and so Loeys-Dietz syndrome. So it's either trisomy 18, which we know is Edwards syndrome. E से start होगा, so E for Ehlers-Danlos, and then D for Loeys-Dietz syndrome. तो उसके बाद हमारे पास जो treatment है, it's non-surgical, and then we also have surgical options. So जो हमारे पास non-surgical options हैं, those are Ponseti method, which is the gold standard, which does not involve surgery, so that's really good. इसमें हम series of casting करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, but they can go up to 6, 7, 8, right? And so you start as early as possible, ideally soon after birth. And हम इसी तरह उसको cave की ही sequence में correct करते हैं, जहाँ हम cavis correct करते हैं, adduction
एंड देन वेरस एंड देन एक्वाइनस को करेक्ट करते हैं और इसकी हम वीकली मैनिपुलेशन करते हैं. सो इट टेक्स 5 to 8 weeks. वीकली हम इसको मैनिपुलेट करते हैं एंड द फाइनल स्टेप इज हम परक्यूटेनियस यानी परक्यूटेनियस मीन्स थ्रू द स्किन हम एक्सिजन देते हैं ऑफ द एक्यूलीज टेंडन जो कि टेनोटमी कहते हैं. So small cut is made behind the ankle in the Achilles tendon जिसकी वजह से ये होती है कि it relieves the pressure and repositioning of the feet allowing the infant to turn their ankle upwards because वो tiptoe position में stuck है. ठीक है and tiptoe position हमें पता है ankle downward होता है but this allows the infant to move their foot upwards and then foot abduction brace is used for maintenance. See so this is a brace हम brace लगा देते हैं for maintenance. तो इसका जो ये भी बहुत सिंपल है. सक्सेस रेट इज़ 80%. लेकिन लेट्स से कि अगर पॉन्सेटी फेल कर जाता है तो हम टेटेनोटमी करते हैं कि हम अकेलीज टेंडन को रिलीज़ करते हैं. ठीक है दूसरी ऑप्शन ये है कि एंटीरियर टिबियल टेंडन ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि जो टिबियालिस एंटीरियर टेंडन है जो कि फुट को लिफ्ट करता है. ठीक है उसको हम डिटैच करते हैं और री राउट करते हैं न्यू लोकेशन पे जिसकी वजह से प्रॉपरली वो यूज़ कर सके इन्फेंट बच्चा. फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट है ट्रिपल आर्थ्रोडेसिस जिसमें सब टेलर टेलोनेविकुलर एंड कैल्केनियो क्यूबॉइड फ्यूजन हो जाती है जिसमें रिजिड और अगर लेट डिफॉर्मिटी है तो इन तीनों बोन्स को हम ज्वाइन कर देते हैं. ठीक है जिससे पेन भी रिलीव हो जाता है डिफॉर्मिटी भी ठीक हो जाती है एंड स्टेबिलिटी भी बेहतर हो जाती है. सो यू कैन सी हियर द टेलस. ठीक है द कैल्केनियस एंड द क्यूबॉइड बोन. ठीक है सो टेलोनेविकुलर सो द टेलस टेलोनेविकुलर द कैल्केनियस जो कि हील है एंड द कैल्केनियो क्यूबॉइड इन तीनों को हम फ्यूज़ कर देते हैं जो पर्पल में मार्क है. ठीक है और इसका क्या है कि एक्सेलेंट विद अर्ली ट्रीटमेंट ठीक हो जाता है लेकिन अगर हम फेल केस का हो जाए या फिर डिले हो तो उसमें मसला हो सकता है. सो देन पेस प्लानस हम देख लेते हैं. पेस प्लानस नॉर्मली एक मीडियल आर्च इतनी होनी चाहिए लेकिन पेस प्लानस इज़ अ फ्लैट फुट. ठीक है और ये सो इट्स लाइक लॉस या तो लॉस हो जाए या अंडर डेवलपमेंट ऑफ द मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च. ठीक है ऑफ द फुट और इन द इंटायर सोल कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड. तो इसकी दो टाइप्स हैं जैसे हमने पहले भी दो टाइप्स पढ़ी थी ना कि एक तो ये होता है कि स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी है और एक ये होता है जो फंक्शनल या पोस्चरल वो है. इसमें हम जो दो टाइप्स पढ़े हैं वो दैट इज़ फ्लेक्सिबल एंड रिजिड. सो इसका क्या सीन होता है कि फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट मीन्स कि the arch is visible when non-weight bearing लेकिन disappears when let's say you're standing और ढेर सारा weight है तो flat foot हो गया. rigid flat foot पे ये कि arch is absent even when non-bearing so even अगर वो बंदा लेटा हुआ हो तो तब भी flat foot नज़र आता है. तो इसकी causes क्या हैं कि physiological भी हो सकते हैं normal in infants हैं prolonged standing की वजह से इतना weight आप apply करते रहो obese हो जाओ diabetes के साथ भी obesity होती है ना ये metabolic syndrome भी हो सकता है तो उसमें बिल्कुल फुट फ्लैट हो जाता है. एंड एक्सेसरी अगर नेविकुलर बोन है या टार्सल कोएलिशन है यानी टार्सल बोन्स अगर आपस में ये these are providing an arch but imagine that they fuse together and if they fuse together that would make a flat bone. ठीक है and then there is a tight Achilles tendon. तो अगर tight Achilles tendon है तो it gives you so Achilles tendon like remember it allows upward pointing at the ankle joint. तो अगर वो बहुत ज़्यादा टाइट हो तो और अपवर्ड पॉइंट हो रहा हो तो इफ़ यू जस्ट पॉइंट योर एंकल अपवर्ड तो आपका फुट फ्लैट हो जाएगा. लाइक ट्राई राइट नाउ अपवर्ड पॉइंट करें अपने टोज़ को तो वो फ्लैट हो जाता है. तो डायग्नोसिस कैसे करेंगे इट्स एक्चुअली वेरी फनी इट्स विद वेट फुटप्रिंट टेस्ट क्योंकि फ्लैट ऐसे दिखेगा नॉर्मल ऐसे होता है एंड देन हाई ऐसे दिखेगा. सो अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल इट्स टू पेनफुल फॉर द पर्सन टू स्टैंड तो देन यू कैन गो फॉर एन एक्सरे. तो ये एसिम्प्टोमेटिक यूजुअली होता है लेकिन इट कैन ऑल्सो कॉज पेन कि वॉकिंग में मसला हो फटीग हो पुअर फुटवेयर टॉलरेंस हो ये यूजुअली इज़ द मेन कंप्लेंट. रिजिड टाइप में लिमिटेड मूवमेंट और टेंडरनेस भी हो सकती है. ठीक है इसकी मैनेजमेंट क्या होती है कि मैनेजमेंट ये होता है आर्च सपोर्ट्स कर सकते हैं और ऑर्थोटिक्स यूज़ कर सकते हैं. फुट एक्सरसाइजेज जिसमें टो कर्ल करेंगे कि यानी टो कर्ल एंड हील रेजेस के वी बार बार यू ऑल्टरनेट बिटवीन टो एंड हील एंड देन सर्जरी. ठीक है अगर फॉर एग्जांपल जो टार्सल कोएलिशन अगर हो गया ये बोनी एबनॉर्मेलिटी है क्योंकि हमने कहा था ना कि जब बोन्स कोएलेस करेंगे तो तब भी हो सकता है. बट यूजुअली हम आर्च सपोर्ट दे सकते हैं या फुट एक्सरसाइजेज या वी कैन यूज स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ फुटवेयर राइट.
Ajay, so then the next thing that we're going to look at is Legg-Calvé-Perthes disease. So Legg-Calvé-Perthes disease. तो ये definition क्या है? This is an idiopathic. So इसकी कोई pathophysiology नहीं है. But it's avascular necrosis of the femoral head's capital epiphysis in children. तो हमें पता है कि ये so this is how it usually should be. लेकिन if we look here तो avascular necrosis हो जाता है जिसकी वजह से जो head है उसकी abnormality हो जाती है. So ये usually boys में होता है. तो हमने क्या कहा था कि DDH females में होता है लेकिन ये boys में ज़्यादा होता है. और ये usually young boys में होता है 4 to 10 की age में होती है and usually ये bilateral 10% of cases में होता है. So usually it's unilateral. इसकी pathophysiology क्या है कि for some reason avascular necrosis कब होता है जब हमारे पास blood supply cut off हो जाए. तो when we don't have blood supply तो उससे होगा क्या कि avascular necrosis हो जाएगा जिसकी वजह से क्या होगा कि avascular necrosis होगा जिसकी वजह से कोलैप्स हो जाएगा एंड बोन की रीमॉडलिंग हो जाएगी और जब रीमॉडलिंग हो जाएगी उसके बाद रीवैस्कुलराइजेशन हो जाएगी लेकिन सब्सिक्वेंटली जो शेप है वो अजीब से ये मशरूम शेप का एसिटाबुलम कह रही हूँ फीमेल का हेड हो जाएगा सो इट्स कैपिटल एपिफिसिस का या जो प्रॉक्सिमल एपिफिसिस है उसकी अजीब सी शेप हो जाएगी सो इस्कीमिया एंड नेक्रोसिस है पर फ्रैगमेंटेशन हो जाएगा सो वी सी यहाँ पे डिस्ट्रप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई सो दिस इज स्टेप नंबर 1 जिसमें ये है एंड इससे क्या होगा डिस्ट्रप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई का मतलब क्या है इट मीन्स इस्कीमिया इस्कीमिया से क्या होगा नेक्रोसिस होगा अच्छा इससे क्या होगा फिर फ्रैगमेंटेशन होगी सो यू सी कि ये सब कॉन्ट्रल फ्रैक्चर हो रहा है और कार्टिलेज सेपरेट करेगा तो ये हमारे पास क्या है फ्रैगमेंटेशन है और फिर ये रीऑसिफाई होगा तो ये वाले जो एरियाज हैं वो रीऑसिफाई हो रहे हैं एंड रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं और हील डिफॉर्मिटी हो जाएगी सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर इस्कीमिया नेक्रोसिस ठीक है उससे फ्रैगमेंट्स बनेंगे देन उसके बाद रीऑसिफिकेशन होगी एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हील डिफॉर्मिटी होगी हील कैसे होती है रीवैस्कुलराइजेशन से अच्छा तो इसमें हमारे पास हमने कहा था LCP राइट LCP तो इसमें जो C है usually this is how I remember it. It's for casting, this is for the pelvis and this is leg. So this will show you कि pain कहाँ कहाँ है कि if you draw a kid यहाँ पे तो उसको leg में दो कौन सी जगह हैं the knee and the hip right और उसके अलावा pelvis में क्या है ये pubic area है so pubic area so इसको यहाँ पे पेन हो रही है groin area में right और जो इसका हल है वो casting है so इसमें ये पेन होगा limp भी होगा of course कि अगर वो इस तरह का mushroom shape का head बन जाएगा तो वो limp करेगा एबडक्शन भी और इंटरनल रोटेशन भी लिमिट हो जाएगी और लिम्ब शॉर्टनिंग भी हो जाएगी तो एल से 3 एल्स हैं इसमें LCP सो इट्स स्टार्ट्स विद L और इसमें लिम्प है पेन तो होगा ही सही P फॉर पेन L फॉर लिम्प के बाद लिमिटेड मूवमेंट्स कौन सी एबडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन एंड लिम्ब शॉर्टनिंग सो जस्ट टर्न दैट P अपसाइड डाउन एंड बिकम्स लिम्ब इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या है एक्सरे हम करेंगे जिसमें हमारे पास ये हो जाएगा स्मॉल डेंस फ्लैटेंड फेमरल हेड है एंड MRI विल डिटेक्ट अर्ली इस्केमिक चेंजेस तो इसका क्या तरीका होता है कि मैंने कहा था कि एनल कास्टिंग यूजुअली होती है तो वी गिव एनाल्जेसिया एंड फिजियोथेरेपी टू मेंटेन रेंज ऑफ मोशन लेकिन हम ट्रैक्शन यूज़ करते हैं टू रिड्यूस द स्ट्रेस ऑन द फेमरल हेड तो वी यूज़ ट्रैक्शन मेथड्स एंड containment methods जिसमें हम brace या osteotomy कर सकते हैं so brace we use casting and self-limiting and will heal in 2 to 3 years so you just have to reassure the parents that this is going to heal by itself in 2 to 3 years in the meanwhile you can do painkillers you can do physiotherapy and you can use traction and you can use a brace or osteotomy ठीक है complications क्या है कि permanent अगर flattened mushroom head shape हो जाएगा secondary osteoarthritis remember osteoarthritis is a common complication and then limb shortening अगर permanent हो जाए